Good morning. Yesterday's problems for homework were problem number 6, 7, 10, 11, 16 and 19. Hopefully solve हुए प्रॉब्लम्स तो आसान नहीं थे, तो अगर सॉल्व किए होंगे तो सॉल्व हुए ही होंगे वो, उसमें as such difficulty नहीं है. Now, first we come to problem number 6. प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया हुआ था? ABC Limited manufactures and sells a typical electronic toy. The selling price and the variable cost of the toy are 20 and 10 respectively. Operating fixed cost amounts to be rupees 5 lakhs and the interest expenses rupees 2.5 lakhs and the DFL is 2. What is the DOL and the sales volume respectively? So यहाँ पे हमारे को क्या find out करना है? Degree of operating leverage and sales volume. What is given is the financial leverage is given 2. So हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन 2.5 lakhs. सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी कैन फाइंड आउट द EBIT and the EBIT comes to rupees 5 lakhs. Then we can find out the contribution. Contribution will be EBIT plus fixed cost is going to be the contribution. And the fixed cost is given rupees 5 lakhs. So 5 plus 5, this is 10 lakhs. And then after this, uh, they are asking what are the DOL and sales volume. So sales volume हम कैसे compute करेंगे इसमें? कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाल सकते हैं हम. सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी 10 lakhs, वो हमने कंप्यूट कर लिया. एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस selling price per unit is 20 and the variable cost is 10. So this will be 1 lakh units. Then अब इसके बाद में what we can do is 1 lakh unit आ गया into 20 करा. So we have got, this is total sales volume is 20 lakhs and the operating leverage will be contribution divided by EBIT, that is 2 times. Got it? Then after this, problem number 7. Problem number 7. Tabi Limited's operating and total leverage are 2 and 3 respectively at present sales level of 10,000 units. The selling price per unit of the output is rupees 12 and the variable cost is rupees 6. So the contribution per unit is going to be rupees 6 here. The company has no preference share capital. Applicable income tax is 50%. Rate of interest is 16%. What is the amount of debt in the capital structure of the company? So what we have got here is sales minus variable cost किया तो हमारे पास में contribution आ गया. And from this we can use the operating leverage to find out the EBIT. Operating leverage is given 2 times. So from this we get the EBIT is coming 30,000. Contribution divided by EBIT. Then इसके बाद में interest compute करेंगे. So interest can be computed using the financial leverage. अब फाइनेंशियल लेवरेज हमारे को पता नहीं है, यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है ऑपरेटिंग एंड टोटल लेवरेज दिया हुआ है. सो फाइनेंशियल लेवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय टोटल लेवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, सो इट कम्स टू 1.5 times. And then we use this financial leverage EBIT divided by EBIT minus interest. तो इससे हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 and value of debt will be interest amount divided by rate of interest. So that comes to 62,500. Got it? Then after this, the next problem for homework is problem number 10.
सो रोल नंबर 10 में क्या दिया हुआ उन्होंने यहाँ क्वेश्चन हमारे को, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेगा लिमिटेड, प्रोडक्शन लेवल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, टैक्स रेट इज 30%, रिक्वायर्ड कंप्यूट द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? इट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द ईबीटी। अगर हम ईबीटी कंप्यूट कर लें तो हमारे को मिल जाएगा। एंड ईबीटी कैसे कंप्यूट किया जा सकता है? यूजिंग द कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। सो उससे हम क्या करेंगे? कंबाइंड लिवरेज इज गिवन 24। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, सो इसमें पहला हम कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ईबीटी। एंड ईबीटी कैसे कंप्यूट होगा? ईबीटी विल बी कंप्यूटेड यूजिंग द कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज, it is contribution divided by EBT, and the combined leverage is given 24, and this is contribution will be 2500 into 150 divided by EBT. So from here we will be getting the EBT will be equal to, ये 2500 into 150 कितना हो गया? 3,75,000 divided by 24, ये कितना आ गया? 625. Then we will be computing, उन्होंने हमारे से पूछा क्या है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पूछा है। सो वी विल बी कंप्यूटिंग अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ ईएटी। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा ईबीटी is 15,625 less tax rate is given कितना? 30%, tax at the rate of 30%. So that comes how much? So 4,006.50. So say round off कर ले, ये 4,006 688 या हाँ 68, ठीक है। So from here what you will be getting is earnings after tax, कितना आ गया? 938। ये अगर 938 लिख रहे हो तो ये 7 लिख दिया, ठीक है। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from the following information from the books of account of IMAX Limited, calculate the percentage change in the earnings per share if the sales increased by 10%. So sales और EPS का relationship कौन से leverage से आएगा? We are going to get it by the combined leverage. Fixed operating cost is 157,500. So what we have to do here is EBIT is given and earnings before tax EBT is given. So what you will have to do here in this case, fixed operating cost उन्होंने हमारे को दिया हुआ है, EBIT is there plus fixed operating cost, that is going to be the contribution, and from that we can find out the percentage change, वहां पे हम compute कर सकते हैं, ठीक है। So here यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11 में पहला जो हम कंप्यूट करेंगे वो कंप्यूट करेंगे कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू EBIT प्लस
fixed cost, EBIT plus fixed cost. And what you have got here, it is EBIT है 31,50,000 plus fixed cost is 1,57,500. So from here we are going to get is the contribution comes how much? $33,07,500. ठीक है. Then what you have got it is, अब इसमें हमारे को क्या कंप्यूट करना है? कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास में. Then what we have got here is परसेंटेज चेंज इन सेल्स. हाँ, सो हमारे को यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज निकालना पड़ेगा. कंबाइंड लिवरेज कैसे कंप्यूट होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज. सो इसके लिए पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेते हैं. सो ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली कंबाइंड लिवरेज भी निकाल सकते हैं. कंबाइंड लिवरेज EBT दिया हुआ है उन्होंने हमारे पास में. हाँ, सो कंबाइंड लिवरेज निकाल के लेते हैं इसमें. ठीक है, सो यहां पे कंबाइंड लिवरेज it is contribution divided by EBT. Contribution divided by EBT, and the contribution is 33,07,500 and the EBT is 14 lakhs. EBT is 14 lakhs. So that is कितना? 2.3625 25 times. अब इसके बाद में what we have to do is परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमारे को पता है एंड हमारे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन EPS. ठीक है, सो कंबाइंड लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला, कंबाइंड लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBT और EPS, बट अब हमारे को चाहिए EPS. परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो इससे हमारे पास क्या जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EPS विल बी change in EPS. This is percentage change in sales into combined leverage, and percentage change in sales is given 10% into 2.3625, so that comes to 23.625%. 23.625%. इतना हमारा परसेंटेज चेंज इन EPS हो जाएगा. देन अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर द होमवर्क, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर होमवर्क is problem number 16. So problem number 16 पे आते हैं. प्रॉब्लम नंबर 16 में उन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है?
From the following information, prepare income statement of the company A and B. कंपनी ए का डेटा दिया हुआ है, कंपनी बी का डेटा दिया हुआ है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन, interest is given, profit volume ratio is given, financial leverage is given, and the tax rate is given 45%. So what you have to do here in this case is we have to prepare the profitability statement. ठीक, तो हमारे को यहाँ पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, एक काम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं एंड फिर उसमें से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So write profitability statement. Profitability statement, and the columns that we are going to have will be particulars, then company A and company B. Company A and company B. So profitability statement format पहले draw कर लेते हैं. It is sales less variable cost. Therefore we have got is contribution. कंट्रीब्यूशन इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट. वी आर गोइंग टू गेट इज ईबीआईटी. ईबीआईटी देन इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट. लेस कर देंगे इंटरेस्ट. सो देयरफॉर वी विल बी गेटिंग इज ईबीटी. इसमें से लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 45%. Tax at the rate of 45%. So we are going to get is earnings after tax. ठीक. So this is the profitability statement. अब यहाँ पे हमारे पास में इंफॉर्मेशन कैसे अवेलेबल है. फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है उन्होंने हमारे को एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है. सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है. ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. सो उससे हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं. ईबीआईटी कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है. ईबीआईटी एक बार निकलेगा फिर आगे बढ़ता है. सो राइट वर्किंग नोट 1. computation of EBIT. Computation of EBIT. अब यहां पे we are having financial leverage. Financial leverage is equal to EBIT divided by EBIT minus interest. Financial leverage is EBIT divided by EBIT minus interest, and the financial leverage एक काम करता है कंपनी ए और कंपनी बी के हिसाब से यहाँ पे कंप्यूट करके लेते हैं. चलो कंपनी ए के लिए क्या हो जाएगा. कंपनी ए financial leverage is given 4 times. This is equal to EBIT divided by EBIT minus interest. Interest is given 3000. So from this can we find out the EBIT. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंगे. सो 4 into EBIT minus 3000 is equal to EBIT. So यहाँ से 4 EBIT
minus 12,000 is equal to EBIT, एंड ये EBIT इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 12,000, दूसरी साइड से ले जाएंगे, सो इट विल बी 3 EBIT is equal to 12,000. So EBIT is going to be 12,000 divided by 3. This is rupees 4,000. Then same way we compute for the company B. Company B के लिए financial leverage is given 3 times. The formula is same, EBIT divided by EBIT minus interest is 2,000. Minus interest is 2,000. So इससे EBIT कंप्यूट करो कितना आएगा. It will be coming 3,000. करेक्ट. ठीक है. सो ये जो हमारे पास EBIT आया है, ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. EBIT is 4,000 and 3,000. Now what? अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद में हम क्या करेंगे? हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. कल हमने फॉर्मूला लिखा था क्या कि वो इनवर्स रिलेशनशिप है, पर फॉर्मूला शायद लिखा नहीं था. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो यहां पे बेसिकली जो ऑपरेटिंग लिवरेज आता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी. हमने सिर्फ वो इनवर्स रिलेशनशिप लिखा था, फॉर्मूला नहीं लिखा था. 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है. अब यहां पे क्या किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमारे को क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा. और ऑपरेटिंग लिवरेज से EBIT मिल गया है तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. गॉट इट? ठीक है. सो अब हम यहां पे क्या करेंगे? सो राइट ये वर्किंग नोट टू computation of contribution. सो अब हमारे को क्या पता है? ऑपरेटिंग लिवरेज पहले कंपनी ए के लिए निकालते हैं. कंपनी ए, what we know is operating leverage is equal to 1 upon margin of safety. Operating leverage is 1 upon margin of safety, and margin of safety for the company A is given 0.20. So 1 upon 0.20. So this is coming 5 times. ठीक है. Then अब हमारे को ऑपरेटिंग लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला भी पता है. इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. एंड ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे को पता है दिस इज 5 टाइम्स. कंट्रीब्यूशन नहीं पता हमारे को.
बट EBIT भी नो हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया है, इट इज 4000. So from this we get is the contribution kit 20,000. So this is 5 into 4,000. Same way we will compute for the company B. कंपनी B के लिए कंप्यूट करेंगे. सो पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे. ऑपरेटिंग लिवरेज दिस इज 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है. सो दिस इज 1 अपॉन 0.25. सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स. दिस इज 4 टाइम्स. एंड वंस वी हैव गॉट दिस, तो इसके बाद में अब हम लेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला. इट इज कंट्री डिवाइडेड बाय EBIT. And this is 4 is equal to कंट्री डिवाइडेड बाय EBIT हमने यहां कंप्यूट किया था 3000. सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. इट इज ₹12,000. ये वैल्यू हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन है 20,000 एंड 12,000. अब ये जो हमारी फिक्स कॉस्ट है ये हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर. सो 20,000 माइनस 4,000 ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 16,000 और ये हो जाएगा 9,000. कोई डाउट या क्वेश्चन यहां पे? देन वंस वी हैव गॉट दिस, तो अब हमारे पास में कंट्रीब्यूशन आ गया और पीवी रेशो दिया हुआ है. पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ठीक. सो वी कम टू वर्किंग नोट 3. वर्किंग नोट 3 कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स. वर्किंग नोट 3 computation of sales. एंड इसके लिए हम यूज करेंगे पीवी रेशो. पीवी रेशो दिस इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. सेल्स इनटू 100. नाउ वी टेक फॉर कंपनी ए. कंपनी ए. कंपनी ए का पीवी रेशो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है. कंपनी ए पीवी रेशो कितना दिया है, 25%. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हमने कंप्यूट किया है 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स पता नहीं है हमारे को इनटू 100. तो इससे हमारे पास सेल्स आ जाएगा 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25. So this will be ₹80,000. Then we compute for company B. PV ratio is given 33 1/3%. PV ratio is given 33 1/3%. So what we are going to have, it is 33 1/3%. This is contribution is given 12,000 हमने compute कर लिया है divided by sales into 100. So from here we will be getting sales is equal to 12,000 into 100 divided by 33 1/3.
So that will be coming rupees 36,000. ये हमारे पास सेल्स आ जाएगी 36,000. ठीक है. Got it. Then अब यहां पे we come to the profitability statement. So यहाँ पे सेल्स हमारी कंपनी ए की थी 80,000 एंड दिस इज 36,000. 80,000 और 36,000 ही है ना. देन अब यहां पे वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू बी बैलेंसिंग फिगर. सो कितना हो जाएगा 60,000 एंड 24,000. ठीक है. इंटरेस्ट के लिए कुछ डेटा उन्होंने हमारे को दिया है क्या. इंटरेस्ट अमाउंट ही दिया हुआ है ना हमारे को. उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,000 एंड 2,000. सो इंटरेस्ट इज गिवन 3,000 and 2,000. So from here what you are going to get is EBT is 1,000 and 1,000. Tax at the rate of 45%. This will be 450 and here also it is 450. So from this we get is earnings after tax जो हमारे पास आ जाएगा that is going to be 550 and 550. बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे. ठीक. मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें एक्चुअल में जस्ट स्टार्ट पॉइंट चाहिए होता है. जहां पे समझ में आ गया कि यहां से शुरुआत करना उसके आगे तो लिंक मिलते चले जाते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 19 वाज होमवर्क. नाउ वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 19. प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या दिया हुआ है. द सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM Excellence Limited at rupees 20 per unit of output is rupees 20 lakhs. Rupees 20 per unit of output is rupees 20 lakhs. तो यहाँ पे कितनी यूनिट सेल हो रही होंगी. 1 लाख यूनिट सेल हो रही होंगी एंड द कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 10 lakhs. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. चलो ठीक है आते हैं उस पे. एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट the DOL of the company is 2.5. The company does not have any preference shares. The number of equity shares are 1 lakh. Applicable corporate income tax rate is 50% and the rate of interest on debt capital is 16% per annum. Calculate the EPS at the sales revenue of 20 lakhs and amount of debt capital of the company if 25% decline in sale will wipe out the EPS. मतलब क्या हो गया लास्ट लाइन का. if a 25% decline in sales will wipe out EPS. मतलब क्या. हाँ. सो EPS वाइप आउट हो जाएगी मतलब साफ हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी. ठीक है. जैसे बोर्ड वाइप करता है ना साफ कर देता है तो ऐसे EPS वाइप आउट हो जाएगी मतलब EPS खत्म हो जाएगी. सो 25% सेल्स में डिक्लाइन से EPS 0 हो जाता है. अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए. इस क्वेश्चन के लिए हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. क्या पूछा उन्होंने. डेट कैपिटल पूछा है. अमाउंट ऑफ डेट.
क्या उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उन्होंने हमारे को? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज 16%। तो इंटरेस्ट रेट दिया है, बट हमारे को इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पता। तो अगर हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द डेट कैपिटल। ये हमारे को पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होगा? इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए होगा। लोग, ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? प्रोसेस जो हम एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन देखते हैं ना, कैसे सोचना शुरू करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द थॉट प्रोसेस, हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिमाग में अगर ये चीजें आने लग जाएंगी, फिर क्या है, पेपर मुश्किल बचता नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन याद नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली होने लगता है एक बार कंसेप्ट पता है तो। नाउ, तो अब इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए। अब इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालें? इंटरेस्ट अमाउंट के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा? ईबीआईटी। और अगर ईबीटी पता चल जाए तो हम इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्या हमारे को यहां पे ईबीआईटी निकालने के लिए कोई हमारे पास में तरीका है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, क्या हमें कंट्रीब्यूशन पता है? आंसर इज यस, कंट्रीब्यूशन है 10 lakhs। सो डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज 2.5 दिया हुआ है, तो उससे ईबीआईटी निकल जाएगा। ठीक। एंड अगर हमारे को ईबीआईटी पता है तो हम वहां से फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, देन अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं? कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है? 25% चेंज से ईपीएस वाइप आउट हो जाएगी। मतलब 25% चेंज इन सेल्स रिजल्ट्स इनटू 100% चेंज इन ईबीटी और ईपीएस। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? उससे हमारी कंबाइंड लिवरेज निकल जाएगी। अब जब कंबाइंड लिवरेज निकल जाएगी तो उससे हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज है, कंबाइंड लिवरेज है, तो उससे हम निकाल सकते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। जब फाइनेंशियल लिवरेज निकल जाएगा तो उससे हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, एंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकलने से हमारा डेट का अमाउंट निकल जाएगा। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक। एंड ईपीएस कैसे निकलेगा? ईएटी मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच आर गिवन 1 लाख, तो हमारे पास में ईपीएस भी आ जाएगा। गॉट इट? सो कहां से शुरुआत करते हैं इसमें? पहला हम निकालते हैं ईबीआईटी। सो फर्स्ट हम कंप्यूटेशन ऑफ ईबीआईटी, of EBIT, computation of EBIT. So here operating leverage, it is contribution divided by EBIT, contribution divided by EBIT. ठीक है, so operating leverage is given 2.5, contribution is given 10 lakhs divided by EBIT, divided by EBIT. So from this what you get is EBIT क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 2.5, बताओ कितना आ गया? 4 lakhs। अब हमारे पास ईबीआईटी है। देन व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमारे को चाहिए होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए फाइनेंशियल लिवरेज, बट हम निकाल सकते हैं पहले कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड
लिवरेज। ठीक है, सो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालेंगे? सो उसमें पहले, सो हियर यहां पे इट इज given that 25% change in sales will wipe out EPS, which means that there will be 100% change in EPS। ठीक है, वाइप आउट हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा? 100% चेंज हो गया इसका मतलब। सो कंबाइंड लिवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कुछ भी लिख लो। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन EPS, percentage change in EPS divided by percentage change in sales, percentage change in sales, percentage change in sales। So what you are going to have here in this case, अब combined leverage हमारे को निकालना है, percentage change in EPS is 100% and percentage change in sales is 25%। सो इससे हमारे पास जो DCL आ जाएगा दैट विल बी 4 टाइम्स। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कंप्यूटेशन या डायरेक्टली अमाउंट ऑफ डेट ही निकाल देता है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेट, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेट। सो उसके लिए हमारे को पहले क्या चाहिए होगा? हमारे को चाहिए होगा फाइनेंशियल लिवरेज। सो फाइनेंशियल लिवरेज is equal to combined leverage divided by operating leverage, and this is combined leverage is 4 and operating leverage is 2.5, 4 divided by 2.5 that comes 1.60 times, 1.60 times। then what we are going to do is, अब इससे हमारे को निकल जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज से EBIT निकल जाएगा। सो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट निकल जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। क्या हमारे को EBIT पता है? हाँ, EBIT पता है ना, 4 lakhs। सो इट इज EBIT minus interest. So financial leverage is 1.6 is equal to EBIT 4 lakhs divided by 4 lakhs minus interest, 4 lakhs minus interest। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंगे। सो 1.60 इंटू 4 lakhs माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 lakhs। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 6,40,000 माइनस 1.6 इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 lakhs। सो इससे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा?
इट विल बी 6,40,000 में डायरेक्टली ही लिख देता हूं, -4 lakhs, हाँ, डिवाइडेड बाय 1.6, दिस इज रुपीज 1,50,000. दिस इज 1,50,000. देन अब क्या करेंगे, amount of debt will be interest amount divided by rate of interest. ठीक है, so यहां से amount of debt, this is interest amount, divided by rate of interest, and the interest amount is 1,50,000. This is 1,50,000 and the rate of interest is 16%. 16% है ना? This is 16%. 9,37,500. ठीक है, so 1,50,000 divided by 16%, 937,500. रुपीज 9,37,500. ठीक, अब इसके बाद में what they have asked next is EPS कैलकुलेट करने को बोला है. EPS अब हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? So computation of EPS. So two columns, particulars and amount. यहां हमारे को EBT नहीं पता बट EBIT पता है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं. So we are having EBIT. we have computed कितना है, 4 lakhs है. EBIT is 4 lakhs. Then less इंटरेस्ट हमने कंप्यूट कर लिया है, इट इज 1,50,000. इससे आ जाएगा हमारे पास EBT. we have got is EBT, this will be 2,50,000. टैक्स रेट इज गिवन, टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 50%. सो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. सो ये हो जाएगा 1,25,000. and we have got is earnings after tax. This is net income. This is 1,25,000. then this divided by number of equity shares, and number of equity shares are given 1 lakh shares. ठीक है, so here then number of equity shares in bracket write given, it is 1 lakh shares. then we will be getting is EPS. This is net income divided by number of equity shares. So this is 1,25,000 divided by 1 lakh. This is rupees 1.6.
होप इट्स क्लियर गॉट दिस. ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक है. सो ये हमारा होमवर्क था. अब हम इसके बाद में, अभी तक जो हमने लिवरेज सीखी है, लिवरेज जब हम डिस्कस कर रहे थे, फाइनेंशियल लिवरेज जब हम डिस्कस कर रहे थे, दैट फाइनेंशियल लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में हमने क्या लिया है अभी तक जो हमने कंसीडर किया है, दैट वी हैव कंसीडर्ड इज द इंटरेस्ट. बट प्रैक्टिकली the preference dividend is also a fixed financial charge. Preference dividend is also fixed financial charge. अब क्या ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमारी रिस्क क्रिएट करेगा? सो आंसर इज यस. बट देयर इज अ डिफरेंस between preference dividend and interest. Preference dividend interest is deducted before computing the tax, but preference dividend is deducted after computing the tax. प्रेफरेंस डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलता हमारे को इनकम टैक्स, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है. ठीक है. सो सेक्शन 36(1)(3) में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलता. ठीक है. तो जब हमने इनकम टैक्स सीखा है तो मतलब ठीक है, भी तो इंटरमीडिएट लेवल पे आसान भी है और थोड़ा सा आसानी, मतलब सेक्शन वेक्शन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे फाइनल पे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर याद हो जाए तब भी क्या बुरा है. ठीक है. कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 है. सैलरी शुरू होता है 16 से. हाउस प्रॉपर्टी शुरू होता है 22. पीजीबीपी शुरू होता है 28 से. कैपिटल गेन शुरू होता है 45 से. अदर सोर्सेज शुरू होता है 55. तो कहाँ खत्म होगा ये भी पता चल जाएगा. सैलरी खत्म हो जाएगा 22 से पहले, मतलब 21, उसके आगे सेक्शन जाएगा नहीं. और हाउस प्रॉपर्टी 27 के आगे नहीं जाएगा. कैप बीटीबीपी 54 के आगे नहीं जाएगा. सॉरी 44 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 45 से कैपिटल गेन शुरू है. एंड कैपिटल गेन 54 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 55 से अदर सोर्सेज शुरू है. पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है. वो ये बताता है कि कैसे वो कैलकुलेशन, कौन सी इनकम उस हेड में आएगी. इसके बाद का सेक्शन ये बताता है कि कंपटीशन कैसे होगी. उसके बाद में कंपटीशन शुरू होता है. देख, याद हो जाती हैं चीजें. देख, आई डोंट टीच टैक्स बट स्टिल आई रिमेम्बर इट. क्यों? क्योंकि एक बार समझ में आ जाती है ना कोई चीज. मैं क्यों बता रहा था ये? अगर टैक्स समझ में आता है तो लॉ भी समझ में आता है. हर चीज का कुछ लॉजिक होता है. अंडरस्टैंड लॉजिक. ये चीजें क्या है, फाइनल पे जब हम पहुंचते हैं ना, तब हमारे को जरूरत महसूस होती है ना. अब यहां पे हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड. फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड. फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड. इसका जो हमारा फॉर्मूला है, अब फाइनेंशियल लिवरेज विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड, हमारा फॉर्मूला हमारे को पता है. ठीक है. सो यहां पे हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड. दिस इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, सो दैट इज व्हाट इट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। यहां तक तो है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। बट प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस है कि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट। सो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। So the formula that we are going to get will be, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा that formula will be this. Financial leverage with preference dividend, the formula is EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आया है प्रेफरेंस डिविडेंड में मतलब माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक। सो व्हाट आई डू, आई टेक टू कंपनीज, जो हमारे पास में दो कंपनी है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है हमारे पास से ए लिमिटेड, एंड दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। मैंने डेलिबरेटली थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैं वहां पे भी कुछ लिखूंगा, जो लास्ट कॉलम के लिए स्पेस मैंने छोड़ा है। सो व्हाट वाज देयर, these two companies are belonging to same business risk class, ठीक। सेम बिजनेस रिस्क क्लास मतलब नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस इज सेम, नेचर ऑफ बिजनेस इज सेम एंड साइज ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो सेम, ठीक है। एंड हम इसको, ये जो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस बिलोंगिंग टू सेम बिजनेस रिस्क क्लास, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे, वहां पे आई विल एक्सप्लेन इट दीज थिंग्स इवन मोर, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी हम इन चीजों को डिस्कस करके लेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास में दोनों कंपनीज का से इक्विटी शेयर कैपिटल इज सेम। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, से 5 लाख रुपीज है दोनों कंपनीज का, ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का, ठीक। देन इसके बाद में जो कंपनी ए है उसमें 10% डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स है कितने के, 5 लाख के। बट बी लिमिटेड में डिबेंचर्स नहीं है, बी लिमिटेड इज हैविंग 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक। ए में नहीं है प्रेफरेंस शेयर बट बी में है, कितने के हैं, 5 लाख। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस कि अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इन दोनों कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के लेता हूं, एंड इफ दीज टू कंपनीज आर बिलोंगिंग टू सेम बिजनेस रिस्क क्लास तो उनका एबीआईटी सेम होगा। आई विल, मैं अभी यहाँ पे मैं उसके डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा हूं, हम लिख लेते हैं इस चीज को। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर ऑन कि ईबीआईटी क्यों सेम होता है, बट ईबीआईटी सेम होगा। नेचर ऑफ सेम बिजनेस रिस्क क्लास मतलब नेचर ऑफ बिजनेस इज सेम एंड साइज ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो सेम। सो नेचर मतलब सेम तरीके का बिजनेस कर, अब इन्फोसिस है और टीसीएस है, दोनों सॉफ्टवेयर कंपनीज है,
सो नेचर ऑफ बिजनेस सेम है. साइज ऑफ बिजनेस विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक. अगर नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, साइज ऑफ बिजनेस सेम है, देन उन दोनों कंपनीज का ईबीआईटी सेम होना चाहिए. इस टाइम पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, मान लेते हैं से ईबीआईटी इज 1 लाख. अब यहां पे हमारा ईबीआईटी से दिस इज रुपीज 1 लाख. अब अगर ए का ईबीआईटी 1 लाख है तो बी का भी ईबीआईटी हमने 1 लाख ले लिया. सो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट दीज टू कंपनीज आर बिलोंगिंग टू द सेम बिजनेस रिस्क क्लास. देन इसमें से लेस करते हैं क्या, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना होगा इंटरेस्ट? कंपनी ए का जो डिबेंचर्स हैं दीज आर 5 lakhs एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज 10%. सो दिस इज गोइंग टू बी 50,000. बी में इंटरेस्ट कितना होगा? बी में इंटरेस्ट नहीं होगा बिकॉज वहां पे डिबेंचर्स हैं ही नहीं. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आर गोइंग टू गेट इज द ईबीटी. इससे क्या आ गया हमारे पास? अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया एंड दैट अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज 50,000 एंड हियर इट इज 1 लाख. देन से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टैक्स रेट है वो 30% है. लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. So that is going to be 15,000 and here it is going to be 30,000. Then from this we are going to get is the EAT, earnings after tax is 35,000 and this is 70,000. Then इसमें से लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड दिस इज ऑल्सो 5 lakhs का 10%. कंपनी ए में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है बट कंपनी बी विल बी हैविंग प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रुपीज 50,000 and from this we get is the net income. Net income and net income here is 35,000 and this is 20,000. 35,000 and 20,000. अब यहां पे हुआ क्या? अब यहां क्या हुआ कि दोनों कंपनीज का नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस सेम था. दोनों का ईबीआईटी सेम था. ठीक. कैपिटल अमाउंट भी सेम था. कंपनी ए के कैपिटल में इक्विटी और डेट था. कंपनी बी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और प्रेफरेंस था. देन जब हमने फाइनली नेट इनकम निकाला तो कंपनी ए का नेट इनकम ज्यादा आया, कंपनी बी का नेट इनकम कम आया. कंपनी बी का नेट इनकम 20,000 है और कंपनी ए का नेट इनकम 35,000. सब चीज सेम होते हुए भी नेट इनकम में फर्क आ गया. और ये जो नेट इनकम में फर्क आया है, ये नेट इनकम में फर्क क्यों आया? बिकॉज कंपनी ए वॉज हैविंग डिबेंचर, सो उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया. यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000. एक जगह इंटरेस्ट 50,000 है, एक जगह प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी सेम है. बट डिफरेंस क्या हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट है दिस इज डिडक्टेड बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्स, बट ये प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्स. ठीक. सो इसकी वजह से जब हमने 50,000 का इंटरेस्ट हमने टैक्स कंप्यूट करने के पहले डिडक्ट किया तो उसकी वजह से हमारी टैक्स में बचत हो गई. यहां पे अगर टैक्स देखो तो 15,000 है, यहां टैक्स देखो तो 30,000. ये जो टैक्स का जो डिफरेंस है
15,000 का, इसी की वजह से हमारी नेट इनकम में भी डिफरेंस है 15,000. Is it clear? So what is happening here in case of the कंपनी बी, हमारी नेट इनकम कम क्यों आई? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड वाज डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्स, तो उसकी वजह से हमारी टैक्स में बचत नहीं है. बट इंटरेस्ट वाज डिडक्टेड बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्स, तो उसकी वजह से हमारी टैक्स में बचत हो गई, सेविंग्स हो गई. या हमारे को जब हम कैपिटल बजटिंग में पहुंचेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. वहां पे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड्स, ये सब आएंगे. एंड लॉजिक कहां से शुरू होता है? लॉजिक शुरू होता है यहीं से. नाउ अब मेरे को क्या चाहिए? नाउ आई वांट टू हैव द सेम नेट इनकम. कितनी नेट इनकम? 20,000 की ही मेरे को नेट इनकम चाहिए थी. कितनी नेट इनकम चाहिए थी? 20,000 की नेट इनकम चाहिए थी, जो कंपनी बी की है. बट किससे चाहिए थी? कंपनी ए से चाहिए थी. ठीक है. सो व्हाट आई वांट नाउ, राइट नाउ इज कि मेरे को 20,000 की नेट इनकम चाहिए जो कंपनी बी की है, बट फ्रॉम द कंपनी है. तो मेरे को उसके लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये हमारे को कंप्यूट करना है. अब यहां क्या होगा? ईबीआईटी 1 लाख है कंपनी ए का, तो ईबीआईटी 1 लाख ही है. इंटरेस्ट अमाउंट हमारे को निकालना है. ठीक, ये पता नहीं है हमारे को. एंड यहां पे हमें क्या पता है कि अगर कंपनी ए है तो इसका प्रेफरेंस डिविडेंड तो नील होगा ना. कंपनी ए में तो डिबेंचर्स हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं. तो यहाँ पे हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 20,000. इज इट क्लियर? ठीक. क्या मैं यहां पे अर्निंग्स बिफोर टैक्स निकाल सकता हूं कंपनी ए की? ये टैक्स डिडक्ट करने के बाद में ये वैल्यू है, और टैक्स रेट कितना है? 30% है. ठीक है. सो हम कैसे निकालेंगे? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. ईबीटी कैसे निकाला जा सकता है? ईबीटी कैन बी कंप्यूटेड. ईबीटी इज ईएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. ईएटी यहां है 20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, सो 1 माइनस 0.30 मतलब 0.70. सो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.70, सो ये आया 28,571. कितना आता है ये? 28,571. सो दिस इज कमिंग 28,571. अब अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं. इनटू 0.30 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा 8,571. वो 0.42 उधर था, 0.42 इधर भी है. ठीक है. सो इससे क्या आ गया? ये आया हमारे पास. अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया तो क्या हम यहां पे अब इंटरेस्ट का अमाउंट कंप्यूट कर सकते हैं? कितना आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट? बैलेंसिंग फिगर 71,429. 429. This is balancing figure. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 50,000 का, 50,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड is equivalent to
इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 71,420। आई बात समझ में? मतलब या तो मतलब 50,000 का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 71,429 के इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों है मतलब या तो मेरा 50,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है या 71,429 का क्या है, इंटरेस्ट है, दोनों बातें एक ही है। मेरे लिए एज ए शेयर होल्डर मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम इंडिफरेंट। मेरी दोनों जगह पे नेट इनकम कितनी होगी, 20,000 ही होगी, मेरे को इसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यहां भी 20,000, यहां भी 20,000, दोनों एक ही एक हो गए। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड ₹50,000, प्रेफरेंस डिविडेंड ₹50,000, 50,000 इज इक्विवेलेंट टू, ये जो साइन है ये इक्वल का साइन नहीं है, इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना, ₹71,429। मतलब या तो मैं 50,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करूं या मेरा 71,429 का इंटरेस्ट हो, तो एज ए शेयर होल्डर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इनकम सेम ही रहेगी। अगर तुम इसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस सेम आ जाएगी, बिकॉज नेट इनकम सेम। इज इट क्लियर गॉट दिस? ठीक, अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ, यहां पे कैलकुलेशन करके बताओ, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30, हाँ, so this is 50,000 divided by 0.70, 71,429, so this is rupees 71,429। ठीक, ये 50,000 क्या था, 50,000 था प्रेफरेंस डिविडेंड, ये था प्रेफरेंस डिविडेंड, और 1 माइनस 0.30 दिस इज 1 माइनस टैक्स रेट, एंड दूसरी साइड पे क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। दिस इज इक्विवेलेंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पे हम वापस से सोचते हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बट अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर द फाइनेंशियल लिवरेज इज, फाइनेंशियल लिवरेज का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, दिस इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज आल्सो अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज, बट प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है ऑन नेट इनकम वो सेम नहीं है। वो सेम क्यों नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेड बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्स, बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्स। दोनों में ये बेसिक फर्क है। ठीक, सो हम जो चीजें सेम या सिमिलर है उन्हीं को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते, मल्टीप्लाई तो किसी को भी कर सकते।
बट ऐड या सब्सट्रैक्ट क्या किया जा सकता है? जो चीजें सेम या सिमिलर है। ठीक। मैं गधे और घोड़े को ऐड करके ये नहीं बता सकता कि टोटल गधे इतने हैं या टोटल घोड़े कितने हैं, नहीं बता सकता। सो हमने शायद मैथ्स में आ, सीखा होगा, जिसको टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चंस आते होंगे कि इतने मैन एक काम को इतने दिन में करते हैं, इतने वुमेन इतने उसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो ये क्या होगा? तो हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते थे ना उसको। ठीक है, वर्क डन बाय मैन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच वर्क डन बाय द वुमन। तो उसके हिसाब से हम इक्विवेलेंट निकाल के कैलकुलेशन करते थे। तो यहां पे भी यही काम किया गया है। हमने क्या करा है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है दैट इज हाउ मच इट इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इट क्लियर? सो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टैक्स रेट इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट। तो यहां पे जब हम फॉर्मूला लेंगे तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टैक्स। इज इट क्लियर? कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक, चलो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कम टू द प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम्स एज सच कोई खास डिफिकल्ट होते नहीं है, बट अब क्या है कि ये क्या लिंकिंग है चैप्टर्स में। अभी जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये अभी जो डिस्कस किया नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होना बेटर है, डिबेंचर होना बेटर है, क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाली हैं। तो उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है हम यहीं से ही तैयार करते हुए चल रहे हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 20। DFL of Dina Limited is to the company pays annual interest of rupees 1 lakh and preference dividend of rupees 15,000. Tax rate of the company is 50%. By what percentage there will be fall in the EPS if the EBIT drops to rupees 1,30,000? अब EBIT और EPS में जो लिंकेज है वो कहां से, कौन सी लिवरेज से आती है? फाइनेंशियल लिवरेज से। ठीक, तो हमारे को यहाँ पे क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? फाइनेंशियल लिवरेज कंप्यूट करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल लिवरेज कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो हमारे को दोनों को ही कंसीडर करके हमारे को फाइनेंशियल लिवरेज कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी कम टू, सो राइट फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड, फाइनेंशियल लिवरेज with preference dividend. So it is EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 - tax rate. ठीक, अब यहाँ पे अच्छा इस क्वेश्चन में, अच्छा हमारे को फाइनेंशियल लिवरेज तो दिया हुआ था, इन ईबीआईटी नहीं दिया था, तो इससे हम क्या कंप्यूट कर लेंगे? ईबीआईटी कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, सो फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड इज 2. This is equal to EBIT divided by EBIT minus interest is 1 lakh minus preference dividend is 15,000. It is 15,000 divided by 1 - tax rates 1 - 0.50. So this is equal to 2 is equal to EBIT
divided by EBIT माइनस 1 लाख माइनस ये हो जाएगा 30,000. So this is going to be 2 is equal to EBIT divided by EBIT minus 1,30,000. So इससे कंप्यूट करो EBIT. 2,60,000. तो यहाँ पे EBIT आ गया 2,60,000. 2,60,000. ठीक. अब EBIT आ गया. अब परसेंटेज चेंज इन EBIT if it drops to 1,30,000, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि अगर ये EBIT 1,30,000 हो गया तो कहाँ से 2,60,000 से, तो कितना परसेंटेज ड्रॉप हुआ? 50% ड्रॉप हुआ. सो राइट परसेंटेज चेंज in EBIT if it drops to rupees 1,30,000. वैसे तो 2,60,000 का आधा हो गया है, बट फिर भी कंप्यूट करके लेते हैं. सो 2,60,000 माइनस 1,30,000 divided by 2,60,000. तो कहां से चेंज हुआ? 2,60,000 से 130 हुआ. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 50%. ये हमारा 50% चेंज आ गया इन EBIT. रिमेंबर, अगर 130 से 260 होता तो 100% चेंज था, बट 260 से 130 हुआ तो 50% चेंज है. ठीक है ना. अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे. परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव हियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल लिवरेज इज परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in EBIT. Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. ठीक. Financial leverage is how much? It is 2. Percentage change in EPS हमारे को find out करना है in EPS divided by percentage change in EBIT is 50%. So यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EPS, this is 2 into 50%, which is equal to 100%. ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 100% आ जाएगा. Is this clear? Got this? ठीक है ना. अब इसके बाद में we come to the problem number 21. सेम रहेगा. वो जो परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. क्योंकि क्या है, जब तुम डिग्री की बात करते हो तो दोनों सिचुएशन में तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड तो रहेगा ही रहेगा ना. मतलब पहले भी रहेगा और बाद में भी रहेगा ना, जब परसेंटेज चेंज निकालोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो है, तो उससे कोई चेंज उसमें फर्क पड़ता नहीं है. दैट रिमेन्स सेम. नाउ
We come to problem number 21. What is given? The operating and total leverage of Krishna Limited are 2 and 5 respectively. ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 2 एंड फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 5. सॉरी, कंबाइंड लिवरेज, टोटल लिवरेज दिया हुआ है 5. सो फाइनेंशियल लिवरेज हम निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे निकाल सकते हैं. 5 डिवाइड बाय 2 किया तो इट विल बी कमिंग 2.5. टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ ऑपरेशन अमाउंट्स टू ₹6,50,000. सो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. Interest expenses and dividend on preference share is ₹75,000 and 36,000 respectively. Corporate income tax rate is 60%. What is sales revenue of the company? So sales revenue निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है. अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल दूं तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेल्स. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा क्या? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूले से. कैसे? ईबीटी दिया हुआ है उन्होंने हमारे को. ईबीटी नहीं दिया हुआ है. तो अब क्या करना पड़ेगा? हमारे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले फाइनेंशियल लिवरेज निकालेंगे. फाइनेंशियल लिवरेज से ईबीआईटी निकालेंगे और ईबीआईटी जब आ जाएगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू कंट्रीब्यूशन निकाल. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहला हम यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं. सो राइट फाइनेंशियल लिवरेज. financial leverage, this is total leverage, total leverage divided by operating leverage, operating leverage. अब यहां फाइनेंशियल लिवरेज, टोटल लिवरेज कितना है? 5. ऑपरेटिंग लिवरेज है 2. सो दिस इज 2.5. गॉट इट? देन अब इसके बाद में वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस डिविडेंड. फाइनेंशियल, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है यहां हमारे पास में. फाइनेंशियल लिवरेज with preference dividend, that is EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax rate, divided by 1 minus tax rate. Now what is here? Financial leverage with preference dividend is how much? It is 2.50. This is equal to EBIT divided by EBIT minus interest is given 75,000 minus preference dividend is 36,000 divided by tax rate 1 minus tax rate, so 1 minus 0.60. So from here what you have got is 2.50 is equal to EBIT EBIT divided by EBIT minus interest is 75,000 और this divided by 1 minus 0.60 कितना है?
90,000. So minus 90,000. So from here what you got is 2.50 is equal to EBIT divided by EBIT minus 1,65,000. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 2.50 EBIT minus 2.50 into 1,65,000 is equal to EBIT is equal to EBIT. So from here what you will be getting is 1.50 EBIT 2.50 into 1,65,000 ये कितना हो जाएगा 4,12,500. इससे हमारे पास आ जाएगा EBIT is equal to 4,12,500 divided by 1.50 2,75,000. This is rupees 2,75,000. Then now what we are going to have next is हम यूज करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज दैट विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. सो यहाँ पे EBIT ऑलरेडी हमारे पास है. सो ऑपरेटिंग लिवरेज दिस इज contribution divided by EBIT and operating leverage is 2. This is equal to contribution divided by EBIT is 2,75,000. So from here we get the contribution is equal to rupees 5,50,000. अब अगर हमारे को सेल्स वॉल्यूम निकालना है सो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेल्स. सो सेल्स विल बी इक्वल टू contribution plus variable cost and contribution is how much? It is 5,50,000 plus 6,50,000. This is rupees कितना 12 lakhs. So ये हमारे पास सेल्स आ गया. इज इट क्लियर? ठीक है, ये सेल्स हो. एक काम करते हैं, एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. 12 o'clock पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. स्टार्ट करें. एक काम करेंगे, आज ये खत्म ही कर देंगे चैप्टर. बहुत कुछ कंसेप्चुअली ऐसा ज्यादा बचा भी नहीं है, बट जो भी चीजें हैं दैट विल कंप्लीट टुडे. नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 23.
क्या दिया हुआ है? द नेट सेल्स ऑफ द हिमालयन कंपनी इज ₹30 crores. Earnings before interest and tax of the company as percentage of net sales is 12%. So क्या दिया हुआ है? EBIT as percentage to the net sales 12% दिया है. The capital employed comprises 10 crores equity, 2 crores, 13% cumulative preference share capital and 15% debentures or ₹6 crores. Income tax rate is 40%. Calculate return on equity of the company. तो जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. सो नेट इनकम मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर डिडक्टिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 crores दिया हुआ है. देन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट द कंबाइंड लिवरेज इज 3. सो व्हाट यू विल हैव टू डू हियर इन दिस केस, यहाँ पे पहला काम हमारे को जो करना है, फॉर कंप्यूटिंग द रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा उसके लिए. सो राइट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. Profitability statement, and here we will be having two columns, particulars and amount that is in rupees crores. यहाँ पे उन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है? सेल्स इज गिवन एंड दे आर सेइंग दैट द EBIT इज द 12% ऑफ द सेल्स. तो हमारे को वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, सो डायरेक्टली विल बी स्टार्टिंग विद द EBIT, and EBIT can be computed that is 12% of 30 crores. ठीक है, सो यहाँ पे EBIT this is 30 crores into 12%. सो 30 crores का 12% कितना होगा? 3.6 crores. इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट, लेस कर देंगे इंटरेस्ट, एंड हियर द डिबेंचर्स वर गिवन कितना? 6 crores के डिबेंचर्स दिए हुए थे. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. सो 6 crores का 15% विल बी 0.90. तो इससे हमारे पास आ जाएगा क्या? EBT. सो राइट देयरफॉर EBT is 2.70. ये 2.70 हो गया. इसमें से टैक्स एट द रेट ऑफ 40% लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%. So 2.70 into 0.40. So this is 1.08. So इससे हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 1.62. Earnings after tax is 1.62. Then from this we are going to deduct is preference dividend less preference dividend. This is 2 into 13%, 2 into 13%, and that is 0.26. So from this we are going to get is net income. Net income means earnings available to equity shareholders. So that comes to 1.36. Then अब हमारे को उन्होंने कंप्यूट करने के लिए बोला है रिटर्न ऑन इक्विटी. सो राइट रिटर्न ऑन इक्विटी, that is called as ROE, return on equity, which is net income
net income divided by value of equity into 100. Net income divided by value of equity into 100. Now value of equity उन्होंने already दिया हुआ है, that is 10 crores. So this is 1.36 divided by 10 into 100. So that will be coming 13.60%. 13.60%. ठीक है. Then अब हमारे को उन्होंने पूछा है ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक, और कंबाइंड लिवरेज उन्होंने हमारे को दिया हुआ है. तो इसके लिए हमारे को निकालना पड़ेगा क्या, फाइनेंशियल लिवरेज. एंड यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो फाइनेंशियल लिवरेज विद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा यहाँ पे. सो राइट फाइनेंशियल लिवरेज विद preference dividend this is EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax rate. And we substitute the values here. EBIT हम already compute कर चुके हैं, this is 3.60 divided by EBIT 3.60 minus interest भी हमारे पास है, this is प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में 0.90 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज 0.26 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, दिस इज 1 माइनस 0.40. सो दिस इज कितना आ जाएगा, 1.588 टाइम्स. अब हमारे को कंप्यूट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज. सो ऑपरेटिंग लिवरेज, this is combined leverage divided by financial leverage. So combined leverage is given how much, कितना दिया हुआ है combined leverage, उन्होंने 3 times दिया है. So it is 3 divided by 1.588. How much it comes to? 1.8891 times. 1.8891 times. Got it? Tick. Now we come to the problem number 25. We come to problem number 25. From the following financial data of company A and company B, prepare their income statements. So हमारे को income statements
प्रिपेयर करने हैं। क्या दिया हुआ है? कंपनी ए कंपनी बी के लिए वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ए का दिया हुआ है अमाउंट में, एंड फॉर द कंपनी बी इट इज 60% ऑफ द सेल्स। फिक्स कॉस्ट कंपनी ए का दिया हुआ है, फिर कंपनी बी का अननोन है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर गिवन, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। देन इनकम टैक्स रेट 30% है, सेल्स इज गिवन, ठीक है। सो व्हाट इज हियर कि जहां पे नहीं दिया हुआ है फाइनेंशियल लिवरेज, इसका मतलब ये नहीं कि वहां फाइनेंशियल लिवरेज है नहीं, या ऑपरेटिंग लिवरेज जहां दिया नहीं है वहां ऑपरेटिंग लिवरेज है नहीं, डेटा दिया नहीं है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो व्हाट इज हियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक काम करते हैं, ड्रॉ करके ले लेते हैं कंपनी ए एंड कंपनी बी के लिए, एंड देन उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वहां पे रखते हैं, और जो कंप्यूट करना वो कंप्यूट करके लेंगे। सो राइट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, profitability statement. The columns that we are going to have will be particulars, then company A and company B. Particulars, then company A and company B. Company A and company B. So profitability statement कैसे आएगा? Sales less variable cost. इसमें से जो डेटा दिया होगा वो हम ले लेंगे, और जो हमारे को फाइंड आउट करना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम दिस विल बी गेटिंग द कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सो दिस इज EBIT, इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट, विल बी गेटिंग इज EBT, इसमें से लेस करेंगे टैक्स at the rate of 30%, so we are going to get is EAT, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक। ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है। कंपनी ए का वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, दिस इज 56,000, तो ये वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। इसका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20,000, देन इसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 12,000, एंड कंपनी बी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 9,000, देन ये दिया हुआ है कंपनी बी का सेल्स दिया हुआ है 1,05,000, 1,05,000, इज इट क्लियर? अब इसके बाद में चीजें कुछ मिसिंग है, वो हमारे को फाइंड आउट करनी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज हियर, ठीक है। अब यहां क्या किया जा सकता है, और साथ में वेरिएबल कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या दिया है, फॉर द कंपनी बी इट इज 60% ऑफ द सेल्स। अब सेल्स पता है, सो यहां पे कंपनी बी के लिए इट विल बी 60% ऑफ 1,05,000, कितना आएगा यहाँ पे, 1,05,000 का 60, ये आ जाएगा 60, 1,05,000 का इंटू 60%, 63,000, ये आ गया हमारा 63,000। So from this what we are going to get here is the contribution. Look, FM जो है सबसे आसान सब्जेक्ट है, वैसे तो सारे ही आसान होते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, इट डिपेंड्स कि हमने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करी है। ठीक है, देन हाउ मच इट कम्स, 63,000 माइनस करने के बाद में कितना आ गया, 42,000। ठीक है, अब यहां हम क्या कर सकते हैं, कंपनी बी के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है उन्होंने हमारे, और ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया, तो उससे हम ईबीआईटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राइट वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, computation of EBIT of EBIT of company B, computation of EBIT of company B. So what we are going to have here, so write operating leverage, operating leverage is equal to contribution divided by EBIT, contribution divided by EBIT, and operating leverage is given, क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये दिया है 4:1, मतलब 4 टाइम्स रेशो में करके दिया हुआ है, सो इट इज 4 टाइम्स, दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है हमारा 42,000 divided by EBIT, and from here what you get is EBIT will be equal to 42,000 divided by 4, this is rupees 13,000। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास में, सॉरी वो तो 50, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गया 10,500 आ जाएगा, 10,500 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो 10,500 आ गया, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट इज, दिस इज EBIT is 10,500, 10,500। नाउ व्हाट कैन बी डन हियर इज, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा यहां पे वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 42,000 में से 10,500 माइनस किया, सो दिस इज 31,500, 31,500। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा 9,000 था, तो ये माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 1,500, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, सो ये आ जाएगा 450, एंड 1,500 में से 450 माइनस किया, सो दिस इज 1050। ये कंपनी ए का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तैयार हो गया। देन अब सॉरी कंपनी बी का, कंपनी ए के लिए आ जाता है। अब कंपनी ए के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां हमारे को फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, या फिर हम लिख सकते हैं EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? So what we are going to have here, so write working note computation of EBIT of the company A, working note 2, computation of EBIT of company A, computation of EBIT of company A। So what we will be having here, यहाँ पे हम फाइनेंशियल लिवरेज जो दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो लेंगे, दिस इज EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट।
divided by EBIT minus interest. EBIT divided by EBIT minus interest. And from here, financial leverage is given 5:1, matlab 5. This is equal to EBIT divided by EBIT minus interest is given 12,000 minus 12,000. So from this, find out the value of EBIT. So this will be 5 EBIT minus 60,000 is equal to EBIT. So EBIT will be coming 15,000. So EBIT is rupees 15,000. This is rupees 15,000. अच्छा एक and we substitute this value here, तो हमारे पास EBIT is 15,000 minus 12,000, so EBT आ जाएगा हमारे पास में 3,000. Tax at the rate of 30%, so ये आ गया 900. So this will be 2,100. ये हमारा 2,100 हो जाएगा. ठीक है. देन अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा इसमें? Contribution will be balancing figure, which is कितना आया? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 35,000 होगा. हाँ 35,000 होगा. सॉरी मैं माइनस कर रहा था, प्लस करके होगा 35,000. एंड कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेल्स. दिस इज 91,000. ये हमारे पास में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बन के आ गया. गॉट इट? ठीक है. नाउ एक काम करते हैं अब इसके बाद में we come to problem number 29. We come to problem number 29. A company has following balance sheet as on 31st March 2023. Liabilities and equity share capital 1 crore shares or rupees 10 each. Reserves and surplus 15%. Debenture. Current liabilities. Assets में fixed assets, current assets. Additional information is given as under. Fixed cost per annum excluding interest is 8 crores. Variable operating cost ratio is 65%. Then total asset turnover ratio is 2.5 and income tax rate is 30%. Required calculate the following and comment. Earnings per share, operating, financial and combined leverage निकाल.
तो अब अर्निंग्स पर शेयर कंप्यूट करने के लिए हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। वेरिएबल कॉस्ट का रेशो दिया हुआ है 65% है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, हाँ इंटरेस्ट दिया हुआ है। मेन जो इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए क्या मिसिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेट, सेल्स, सेल्स निकाला जा सकता है। उन्होंने टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, एंड बैलेंस शीट में हमारे पास में टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स कितने हैं 40 करोड़ से, तो 40 करोड़ से तो उससे सेल्स निकल जाएगा, और एक बार सेल्स निकला तो पूरे सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, फिर तो हम कंप्यूट करते चले जाएंगे। सो क्या करना पड़ेगा, पहला टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से हम सेल्स कंप्यूट कर लेते हैं। सो राइट टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट turnover ratio, this is sales divided by total assets, sales divided by total assets, and total asset turnover ratio is given 2.50 is equal to sales divided by total assets are 40. So from here what you will be getting is sales will be 2.50 into 40, so ये कितना हो जाएगा रुपीज 100 करोड़। ठीक है, नाउ वी कम टू द ए पार्ट। अब हम आ जाते हैं ए पार्ट पे, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी statement and two columns, amount particulars and amount rupees crores, particulars and amount rupees crores। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव हियर, यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स हमने अभी कंप्यूट कर लिया है, दिस इज 100, एंड उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया हुआ है वो है 65%। ठीक है, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में उन्होंने वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो इज 65%, 65% ऑफ व्हाट, सेल्स का ही होगा। सो लेस वेरिएबल कॉस्ट 100 का 65%, दिस इज 65 करोड़। सो इससे आ जाएगा हमारे पास में कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज 35, इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट उन्होंने हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज 8, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, सो देयरफॉर वी हैव गॉट इज EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 38 में 35 में से 8 माइनस किया, सो इट विल बी कमिंग 27। ठीक है, देन फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू डिडक्ट द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे उन्होंने 15% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 20 करोड़ के, सो उसका इंटरेस्ट आएगा, सो लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इट इज 20 into 15%, so this is 3 crores। So from here we will be getting is EBT, therefore EBT this is 24 crores। इसमें लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, so 24 3 7.2
7.2। सो इससे हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 16.80। ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमारा नेट इनकम भी है, नेट इनकम भी है। देन अब इसके बाद में नंबर ऑफ ईपीएस निकालना हमारे को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, number of equity shares, and this is numbers crores। कितने कितने शेयर्स हैं? 1 करोड़ शेयर्स है। 1 करोड़ शेयर्स दिए हुए वहां क्वेश्चन में उन्होंने हमारे को। सो दिस इज 1 एंड फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग द ईपीएस। हमारे पास क्या जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर। दिस इज net income divided by number of equity shares। So this is 16.80 divided by 1। 16.80 करोड़ से और डिवाइड बाय 1 करोड़ है, तो ये आ जाएगा रुपीस 16.80। तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। सो वी आर गोइंग टू कंप्यूट ऑपरेटिंग लिवरेज। और इंटरप्रिटेशन भी लिखने को बोला है, तो जो है वो लिख के ले लेंगे उसमें इंटरप्रिटेशन। सो बी ऑपरेटिंग लिवरेज, operating leverage, this is contribution divided by EBIT, contribution divided by EBIT। contribution है 35 divided by 27, 1.2963 times, 1.2963 times। इसका मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग leverage of 1.2963 times represents that if we change our sales or contribution, our sales or contribution by 1%, then there will be 1.2963% change in EBIT, ठीक है। सो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। देन आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट इज, हमारे को कंप्यूट करना है फाइनेंशियल लिवरेज। सो फाइनेंशियल लिवरेज विल बी EBIT divided by EBT। सो राइट सी financial leverage, this is EBIT divided by EBT, and EBIT is 27 and EBT is 24। so this is 27 divided by 24, this is 1.125 times, 125 times, ठीक है। सो अब इसका भी इंटरप्रिटेशन लिख लो।
तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो सब लिख के ले लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर क्या है, थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे ये नहीं लिखा तो आधा मार्क एक मार्क काट लिया। सो फाइनेंशियल लेवरेज 1.125 टाइम्स represents that if we change our EBIT by 1%, then there will be 1.125 times change in EBT or EPS. या टाइम्स की जगह परसेंटेज कर लो, ये परसेंटेज चेंज इन EBT और EPS। देन अब इसके बाद में वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कंबाइंड लिवरेज। सो द कंबाइंड leverage, it is operating leverage into financial leverage, and this is कितना था 1.2963 into 1.125 4583 times 1.4583 times। ठीक है, so combined leverage of 1.4583 times represents that if we change our sales or contribution by 1%, then there will be 1.4583% change 83% change in EBT or EPS, ठीक है। देन एक काम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, क्या दिया हुआ है उन्होंने, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन 1 and 2 and financial plans A and B. So installed capacity is given 4000 units, actual production and sales is 75% of the capacity, selling price is rupees 30 per unit, variable cost fixed cost under situation 1 and situation 2 में fixed cost दी हुई है, एंड दो फाइनेंशियल प्लान्स दिए हुए हैं, फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी 10,000, 15, डेट 10,000, 5,000, सो टोटल इज 20,000। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे को करना क्या है कि हमारे पास में दो फाइनेंशियल प्लान है और दो सिचुएशन है, फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल प्लान्स अलग अलग हैं यहां हमारे पास में। ठीक है, सो यहां पे उन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 4000 यूनिट्स,
बट जो हमारी कैपेसिटी है उसका हम 100% यूटिलाइजेशन कर नहीं रहे, वी आर डूइंग ओनली 75% यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी। मतलब अगर हम 4000 यूनिट्स बना सकते हैं तो 4000 यूनिट्स बना नहीं रहे हैं, हम उसकी 75% ही बना रहे हैं। तो जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स है दैट इज 75% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सो 4000 का 75% 3/4, सो 3000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, सो राइट, अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से पहले ये जो चीज है इसको लिख लेते हैं। सो राइट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड capacity, it is 4000 units, 4000 units, and here actual production and sales, actual production and sales, it is 75%, 75% of capacity, 75% of the capacity। then अब यहाँ पे सो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन एंड सेल कितना हो गया? सो एक्चुअल प्रोडक्शन and sales, so this is 4000 का 75%, तो ये आ जाएगा 3000 यूनिट्स। तो जो हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है वो 4000 यूनिट्स का नहीं बनाना, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो बनाना होगा वो सिर्फ 3000 यूनिट्स के लिए ही हमारे को बनाना है। ठीक है, एंड एक काम करेंगे, इसी स्टेटमेंट में यहीं पे ही हम लिवरेजेस भी कंप्यूट कर लेंगे, जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसी में लिवरेजेस भी कंप्यूट करेंगे। सो राइट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिवरेजेस, स्टेटमेंट of profitability and leverages, statement of profitability and leverages, and the columns that we are going to have will be particulars। अब इसमें हम कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? particulars, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट 15000 है, सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट 20000 है। फिर उसके बाद में हमारे पास में फाइनेंशियल प्लान ए एंड फाइनेंशियल प्लान बी है। तो सिचुएशन 1 में प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 में प्लान ए प्लान बी, इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास में टोटल 4 कॉलम आएंगे, ब्रॉडली 2 कॉलम्स। तो कॉलम्स इसमें किस तरीके से बन रहे हैं? पर्टिकुलर्स, then situation 1, and situation 2। here इसके अंडर में we are having plan A and plan B, situation 2 में भी plan A and plan B। ठीक है, कैसा दिया हुआ था? आई रीड द क्वेश्चन अगेन। Calculate operating, financial and combined leverage from the following situations 1 and 2 and financial plans A and B. Installed capacity, actual production and sales is 75% of the capacity. Then selling price is rupees 30 per unit, variable cost rupees 15 per unit. Under situation fixed cost under situation 1 is 15,000, situation 2 is 20,000। एंड जो फाइनेंशियल प्लान ए और बी है उनके कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं।
तो हमने सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 लिया एंड उसके अंडर में सिचुएशन 1 में प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 में प्लान ए प्लान बी। देन अब यहाँ पे होगा क्या, सेल्स तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 3000, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स 3000 यूनिट्स इंटू 30, सेल्स 3000 यूनिट्स into rupees 30, so this is going to be 90,000 और ये जो 90,000 होगा ये चारों कॉलम में आएगा, ये चारों कॉलम में आ रहा है। इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज 3000 यूनिट्स into rupees 15, so that comes to 45,000 और ये भी सारे कॉलम्स में ही आएगा, दिस इज ऑल्सो इन ऑल द 4 कॉलम्स। इससे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी 45,000, so here therefore contribution 45,000 एंड ये चारों कॉलम में आ गया। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 के दोनों कॉलम के लिए फिक्स कॉस्ट विल बी सेम, कितना 15,000 एंड 15,000, बट सिचुएशन 2 में हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो होगा 20,000 एंड 20,000। अब इससे हम क्या कंप्यूट करेंगे, हमारे पास आ गया EBIT, हमारे पास आया EBIT, देयरफॉर EBIT ये हो गया 30,000, यहां भी 30,000, ये 25,000, यहां भी 25,000। देन इससे लेस कर देंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, लेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%। अब यहां प्लान ए प्लान बी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होंगी। प्लान ए में हमारा जो डिबेंचर्स है या डेट दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है 10,000, प्लान बी में दिया हुआ है 5,000, so 20% of 10,000 this will be 2,000, और सिचुएशन 2 का जो प्लान होगा उसका भी 2,000, सिचुएशन 2 का प्लान ए भी 2,000। देन अब इसके बाद में प्लान बी के लिए दिस इज 1,000 एंड हियर ऑल्सो इट इज 1,000। इससे हमारे पास क्या आ गया, वी हैव गॉट इज द EBT, EBT which is net income, because प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। ये हमारे पास आ गया 28,000, 29,000, 23,000, 24,000। देन ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट यहां खत्म हो गया। देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज लिवरेजेस। इसी स्टेटमेंट में हम लिवरेजेस भी कंप्यूट करके लेते हैं, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेजेस, computation of leverages. Under that, first operating leverage, operating leverage, it is contribution divided by EBIT,
contribution divided by EBIT. ठीक. So what we are going to have here, यहाँ पे contribution है 45,000 divided by EBIT is 30,000. यहाँ पे 45,000 divided by 30,000. यहाँ पे 45,000 divided by 25,000. So ये हमारे पास आया कितना? This is 1.5. 1.5. ये वाला कितना आ रहा है? 45,000 1.80 और ये भी 1.80. 1.80. Then अब इसके बाद में we are going to compute financial leverage. Financial leverage. Financial leverage. This is EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. And this is 30,000 divided by 28,000. 30,000 divided by 29,000. 25,000 divided by 23,000. 25,000 divided by 24,000. And that comes to, बताओ, 1.0714. 1.0345. 0869. 0417. And combined leverage, operating leverage into financial leverage. Combined leverage, it is operating leverage into financial leverage. मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1.6071, 1.5518, 64. 1.8751. ठीक है. So what we are going to have here in this situation, यहाँ पे अब क्या होगा? ये जो हमारे लिवरेजेस आए हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, इसका इंटरप्रिटेशन ले. ठीक. सो अगर हम यहाँ पे देखें कैसी सिचुएशन है, इसमें से हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? इफ यू सी
सिचुएशन टू प्लान ए, सिचुएशन टू प्लान ए इसका हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज है और हाईएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाईएस्ट और फाइनेंशियल लिवरेज भी हाईएस्ट। ठीक, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क भी ज्यादा है और फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। इज इट गुड? नो, इट्स नॉट गुड, इट्स अ वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज्यादा है। ऑपरेटिंग रिस्क फाइनेंशियल रिस्क दोनों ज्यादा हो गए, तो क्या हो गया, बहुत रिस्की हो गया कॉम्बिनेशन। सो इट शुड बी अवॉइडेड। सो एक काम करते हैं, लिखते जाते हैं डिस्कशन के साथ में। इस पे भी कई बार एमसीक्यूज में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ लिवरेजेस। Of leverages, interpretation of leverages. So right, first, in case of situation to plan A, सिचुएशन टू प्लान ए, मतलब हमने किसकी बात करी, सिचुएशन टू प्लान ए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इसकी बात हो रही है। ठीक है, सो वी आर हैविंग हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब जो अवेलेबल डेटा है उसमें से हाईएस्ट 1.80 इज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड 1.0869 जो हमारी फाइनेंशियल लिवरेजेस कंप्यूट हुई हैं उनमें हाईएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज भी यही है। ठीक है, सो अब यहां पे क्या हो गया, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क भी हाई है, फाइनेंशियल रिस्क भी हाई है। तो क्या करेगा, ये हाई हाई सिचुएशन पैदा कर देगा, रिस्क बहुत बढ़ गया। So this should be avoided. ठीक, so right, in case of the situation to plan A, we are having highest operating and financial leverage, therefore it is very risky combination, hence should be avoided, ठीक, लेकिन पूछा तो था नहीं। ठीक है, पूछा नहीं था फिर भी लिख रहे हैं, हम सीखने के लिए लिख रहे हैं, नॉट फॉर एग्जाम। अगर पूछा नहीं जाए, पूछे इंटरप्रिटेशन, पूछे कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा तो हमारे को लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। देन अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट आते हैं किस पे, सिचुएशन 1 प्लान बी। सिचुएशन 1 प्लान बी मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज भी लोएस्ट है, 1.50 इज लोएस्ट एंड फाइनेंशियल लिवरेज भी लोएस्ट है, दोनों ही लिवरेज लोएस्ट है।
सो क्या हो गया, ना तो हम ऑपरेटिंग रिस्क लेना चाह रहे हैं, ना फाइनेंशियल रिस्क लेना चाह रहे हैं, हम बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं। ठीक। सो क्या होगा, ये वेरी बहुत कंजर्वेटिव एटीट्यूड हो गया फाइनेंस मैनेजर। अब अगर रिस्क ही, अब बिजनेस करना ही है तो थोड़ा तो रिस्क लो ना। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा तो रिस्क, मतलब अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो हम घर भी बैठ सकते हैं ना, पैसा जमा कर दो, कहाँ, एफडी कर दो बैंक में, वो भी गवर्नमेंट बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में नहीं। सो व्हाट इज हियर, यहाँ पे क्या हो गया कि ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया। तो ये जो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी को मैक्सिमाइज नहीं करेगा। हम अभी कंप्यूट करके लेते हैं, वो चीज भी मैं निकाल के लेता हूँ, इसी में कैलकुलेशन करके लेता है कि कैसे जो अभी हम आंसर लिख रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया। एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। उसके लिए थोड़ा सा हमारा फ्रेमवर्क यहीं पे ही तैयार हो जाएगा। सो राइट सेकेंड, in case of situation 1, in case of situation 1, plan B, we are having lowest operating and financial leverage which indicates very conservative attitude of finance manager, hence should be avoided। ठीक है, अब हमारे पास में दो प्लान बचे रह गए दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, कौन से? इसमें सिचुएशन 2 प्लान बी, सिचुएशन 2 प्लान बी एंड सिचुएशन 1 प्लान ए। अब जब हम सिचुएशन 2 प्लान बी देखते हैं तो इसमें कैसा है कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो हाई है, मतलब कंपैरेटिव अगर हम देख रहे हैं उसमें, एंड जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो लोएस्ट तो नहीं है बट लोअर साइड पे है। सो ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है बट फाइनेंशियल लिवरेज कंपैरेटिवली जो डेटा है उसमें हाई नहीं है, लोअर साइड पे है। ये प्लान ए, सिचुएशन 1 के प्लान ए से कम है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, रिस्क सही हो गई, बैलेंस हो गई, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा थी तो फाइनेंशियल रिस्क से हमने उसको बैलेंस कर दिया। सो ओके, कोई बुरा नहीं है, बट स्टिल इट इज नॉट अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अभी क्यों नहीं है मैं फाइनल आंसर भी उसमें कंक्लूड करके, मतलब मैं तुम्हारे को कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि वो क्यों नहीं है। राइट, नेक्स्ट, in case of situation 2, plan B, situation 2 plan B, we are having higher operating leverage
operating leverage, and but financial leverage is on lower side as it is having higher operating leverage but lower as it is having higher operating leverage, therefore it is not best combination and will not maximize ROE. ROE stands for return on equity. ठीक है. Then after this, next is uh, situation 1, plan A. Situation 1, plan A is best combination कैसे. जब हम यहाँ पे देखते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं. सिचुएशन 1 प्लान ए. इसमें जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कम है और फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं. इनमें से कंपेयर किया, ये लोएस्ट है, ये उससे ज्यादा है, ये हाईएस्ट है. ठीक है, हाईएस्ट भी नहीं है बट हायर साइड पे ही है. ठीक है, कंपेयरिंग विद द अदर प्लान्स. सो क्या हो गया इस केस में कि ऑपरेटिंग लिवरेज कम है बट फाइनेंशियल लिवरेज थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, हायर साइड पे है कंपेयरिंग टू द अदर प्लान्स. So it will be a best combination and it will maximize the ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी को मैक्सिमाइज करेगा. ठीक है, मैं करके दिखाता हूं कैलकुलेशन. सो इस बेस्ट कॉम्बिनेशन एज इट इज having operating leverage on lower side, operating leverage on lower side and financial leverage on higher side and it will maximize the return on equity. This is ROE. ये क्या करेगा, ये ROE मैक्सिमाइज करेगा. ठीक है, ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि वो जो हमारे पास डेटा था मैं वही डेटा लेता हूं और उसमें से
थोड़ा सा हम अजम्पशन ले लेते हैं। इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी दी है कि हाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है ना यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। अजम्पशन कुछ नहीं लेना है, सिंपल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग वी टेक द वैल्यूज, ठीक। और मैं रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्यूट करता हूं, ठीक। ठीक है, सो व्हाट वी आर हैविंग इन दिस केस, अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हम कैसे निकालेंगे? नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐसे कंप्यूट होगा। गॉट इट। सो व्हाट इज हियर, यहाँ पे अब हमने नेट इनकम कंप्यूट कर ली है। क्या है नेट इनकम? दिस इज ईबीटी। ईबीटी, लुक ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट ये पूछा जा चुका है कि इसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। एंड व्हाट इज हियर, यहां पे अब हमारे पास में कैसा है? नेट इनकम है 28, 29, 23, 24। सो 28,000, 29,000, 23,000 एंड 24,000। देन वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये हमारे को प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो हमारे को जो प्लान ए प्लान बी दिए ना उसमें इक्विटी की वैल्यू भी दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर प्लान ए it is 10,000, it is 10,000, and for the plan B it is 15,000. Then what we have to compute is the return on equity. Return on equity का formula क्या है? Net income divided by value of equity. ROE is net income divided by value of equity into 100, ठीक। so this is 28,000 divided by 10,000 into 100, कितना आ जाएगा? दिस विल बी 280%। दिस इज 29,000 divided by 15,000 into 100, ये आएगा 23,000 divided by 10,000 into 100, and this is 24,000 divided by 15,000 into 100, कितनी आगे वैल्यूज? ये तो 230% हो गया। हाँ राउंडेड ऑफ ले लेता हूं मैं, ठीक है। जस्ट हमारे को पूछा तो है नहीं, 193% है। और ये वाला 160%, ठीक। सो अब क्या हो गया, जब हम यहां पे देखते हैं हमने क्या लिखा था? इन केस ऑफ सिचुएशन टू प्लान ए, सिचुएशन टू प्लान ए, हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, हाईएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज था, हाईएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज, रिस्की कॉम्बिनेशन, बट रिटर्न उतना नहीं बढ़ा, ठीक। देन अब यहां पे देखोगे तो जो मैक्सिमम रिटर्न ऑन इक्विटी आया है, बाकी सब जाने तो मैक्सिमम रिटर्न ऑन इक्विटी कहां पे आया है?
ये आया है सिचुएशन वन प्लान ए। हमने बेस्ट प्लान कौन सा लिखा है? इन केस ऑफ सिचुएशन वन प्लान ए इट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये है हमारा सिचुएशन वन प्लान ए इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। कैसे है बेस्ट कॉम्बिनेशन? हमने जब शुरुआत करी थी अपनी तो हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हमारे प्रिंसिपल थे, तो उसमें से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल सेज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब उनका रिटर्न बढ़ेगा। कंपनी का रिटर्न नहीं, शेयर होल्डर्स का रिटर्न। शेयर होल्डर का रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ये हाईएस्ट कहाँ पे आया? सिचुएशन वन प्लान ए में आया हाईएस्ट। ठीक है, इट इज नॉट देयर इन हाईएस्ट, तो ये यहीं पे ही है। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड वन थिंग, लुक, जब तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है अगर वो कम हो सके तो अच्छा है। क्या चीज? जो फिक्स कॉस्ट है वो अगर कम हो सकती है तो अच्छा है। सेम बिजनेस कर रहा है, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, सपोज से एक रेस्टोरेंट मैंने स्टार्ट किया। मैं एक काम कर सकता हूं, एक बहुत बड़ा स्पेस ले लेता हूं, ज्यादा रेंट पे करता हूं, और दूसरा एक कंपैरेटिवली छोटा स्पेस लेता हूं और रेंट कम पे करता हूं। अब दोनों जगह पे अगर मेरा बिजनेस, मेरी सेल सेम है तो मेरे लिए क्या अच्छा है? जहां मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो वो अच्छा है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव हियर इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे अगर मेरे पास में दो सिचुएशंस हैं, ठीक, दोनों सिचुएशन में मेरी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगर सेम रहेगा, तो मेरे को कोशिश करनी चाहिए कि मेरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम से कम हो। दैट इज अ गुड सिचुएशन, दैट इज बेटर फॉर मी। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल, सो अगर मैं बोरो करता हूं और इन्वेस्ट करता हूं, हमने एक क्वेश्चन लिया था कि जहां पे हम बोरो कर रहे थे 9% पे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था हमारा 27%। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। सो वहां पे क्या था हमारे लिए बेटर? क्या था कि बोरो करो और इन्वेस्ट करो, मतलब अपनी जेब से पैसा लगाने की जगह उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोरो करके इन्वेस्ट कर दोगे, सो दैट दैट सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर। सो वहां पे क्या होगा? रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। सिचुएशन वन प्लान ए में हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों मैक्सिमाइज हुआ? क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट तो कम कर दिया, बट बोरो करके हायर रेट पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि जब तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारा रिटर्न बढ़ेगा ही। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक, यहाँ पे कोई डाउट या क्वेश्चन? इज दिस क्लियर? ठीक, अब इसके बाद में we come to प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 पे आता, या एक मिनट इसमें, एक मिनट देखते हैं और कुछ। जस्ट
बन गया, ठीक है, ठीक। हाँ, हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे आते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद में 14। प्रॉब्लम नंबर 12। The selected financial data for A, B, and C companies for the year ended 31st March 2024. Variable expenses as percentage to sales is given. Interest expenses, degree of operating leverage, degree of financial leverage, and the tax rate it is 0.35, matlab 35%. Prepare income statement of ABC companies. Comment on the financial position and structure of these companies. ठीक है, सो व्हाट विल हैव टू डू, पहला काम हमारे को जो करना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम स्टेटमेंट हमारे को बनाना है फॉर द कंपनीज ए, बी एंड सी. सो राइट फॉर ए पार्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. ठीक, सो इसमें कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे. पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड, B Limited and C Limited. A Limited, B Limited and C Limited. ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे उसका फॉर्मेट पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. उसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो वहां रख देते हैं एंड जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो हम फाइंड आउट करके लेते हैं. सो राइट हियर सेल्स, इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट. Variable cost, therefore we will be getting is the contribution इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट लेस करा, so we are going to get is the EBIT. therefore EBIT इसमें से लेस कर दिया हमने interest, therefore we have got is EBT, earnings before tax, and लेस कर देंगे tax at the rate of 35% and we will be getting is EAT, earnings after tax. Now what information is available to us, यहाँ पे जो हमारे पास information available है वो सिर्फ interest की information available है and वो कितना है 200, 300 and 1000. 200, 300 and 1000. This is the information available to us. अब इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे को फाइंड आउट करनी है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. अब हमारे को इंटरेस्ट पता है और फाइनेंशियल लिवरेज पता है, तो उससे हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं, EBIT कंप्यूट कर सकते हैं. सो राइट वर्किंग नोट 1 कंप्यूटेशन ऑफ EBIT. वर्किंग नोट 1 computation of EBIT. ठीक, इसमें A लिमिटेड, B लिमिटेड and C लिमिटेड. A लिमिटेड, B लिमिटेड and C लिमिटेड. अब यहां पे फाइनेंशियल लिवरेज
क्या है फॉर्मूला? इट इज EBIT divided by EBIT minus interest. ठीक, and this is given 3, 4 and 2. इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं EBIT divided by EBIT minus 200 is equal to 3. दूसरी इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी that will be EBIT दूसरे B लिमिटेड के लिए minus EBIT divided by EBIT minus 300 is equal to 4. is equal to 4 and यहाँ पे इसी तरीके से हो जाएगा EBIT divided by EBIT minus 1000 is equal to 2. ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे and we are going to get the value of EBIT. So what you are going to get here is EBIT is equal to 3 EBIT minus 600. So इससे EBIT हमारे पास कितना आ जाएगा? 300. ऐसे ही बी लिमिटेड की इक्वेशन सॉल्व करके बताओ EBIT कितना आएगा? 400. यहाँ पे EBIT आएगा 2000. EBIT is 2000. अब ये वैल्यूज हम क्या करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में रख देते हैं. सो EBIT की वैल्यू यहाँ पे है 300, यहाँ है 400 और यहाँ है 2000. अब इसके नीचे की जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे. सो व्हाट वी आर हैविंग, EBT यहाँ आ गया हमारे पास में 100, 100 and 1000. Tax at the rate of 35%, 35, 35 and 350. And then इससे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकल जाएगा. Earnings after tax will be 65, 65 and 650. 65, 65 and 650. अब क्या चाहिए होगा? हमारे पास में है ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज है EBIT. अब हमारे को पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. सो राइट वर्किंग नोट टू computation of contribution. Computation of contribution. अब हम कंट्रीब्यूशन किससे निकालेंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज से निकालेंगे. सो राइट ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज. दिस इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT. कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT बोला मैंने, EBIT. ठीक है. सो इट इज गिवन 5, 6 and 2. ठीक है.
So what we are going to have here, country divided by EBIT divided by EBIT कितना है 300 है इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो जाएगा 300 इंटू 5 ये 1500 हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे कंट्री डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 6. सो यहाँ पे कंट्री हो जाएगा 2400 एंड यहाँ पे कंट्री डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे कंट्री हो जाएगा 4000. ठीक. सो वी हैव गॉट द कंट्रीब्यूशन हियर. हमारे को कंट्रीब्यूशन मिल गया. अब कंट्रीब्यूशन मिल गया तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. सो कंट्रीब्यूशन इज कितना है 1500 2400 एंड 4000. ठीक. अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके हमारे पास आता है EBIT. सो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी. कितनी आ गई फिक्स कॉस्ट 1200 2000 एंड 2000. अब इसके बाद में हमें कंप्यूट क्या करना है. वी हैव टू कंप्यूट इज सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो वो कैसे कंप्यूट करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज टू सेल्स इज गिवन. ठीक है. सो वहां पे क्या हो गया, बेसिकली वो पीवी रेशो वाला कंसेप्ट आ जाएगा. ठीक. सो उसमें क्या करते हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा वो इलस्ट्रेशन जैसा बना के उसको कर लेते हैं. सो राइट वर्किंग नोट 3 कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स. वर्किंग नोट 3 कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स. वही हमारी तीन कंपनीज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड. ठीक. अब यहां पे उन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दी है उन्होंने वेरिएबल एक्सपेंसेस एज परसेंटेज टू सेल्स दिया हुआ है. ठीक है. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब परसेंट, सेंट मतलब होता है 100. दिस इज व्हाट द परसेंटेज मींस. ठीक है. सो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि से सेल्स एज्यूम कर लेते हैं हम 100 रुपीज. ठीक है. जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है. सेल्स जो हमने ली से इट इज ₹100 है नहीं, 100 है नहीं वहां पे तीनों की. ठीक है. सेल्स डिफरेंट ही है बट एज्यूम कर लिया कि से इट इज 100. इसमें से वेरिएबल कॉस्ट. ठीक. अब यहां पे ए लिमिटेड के लिए उन्होंने दिया हुआ है 66.67, बी लिमिटेड के लिए दिया हुआ है 75% एंड सी लिमिटेड के लिए दिया हुआ है 50%. गॉट इट. नाउ अब यहां से हम क्या आ गया हमारे पास, कंट्रीब्यूशन आ गया. ठीक है. सो ये जो कंट्रीब्यूशन है it is 33.33, this is 25 and this is 50.
एंड अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करूं इंटू 100 करूं तो वो पीवी रेशो आता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आया है हमने 100 करके ही लिया है, सो ये बेसिकली पीवी रेशो आ गया ना हमारा। हाँ या ना? बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन इसमें? हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड का पीवी रेशो है 33.33%, बी लिमिटेड का पीवी रेशो है 25%, सी लिमिटेड का पीवी रेशो है 50%। ठीक, अब यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन कर, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेल्स अगर हम निकालते हैं तो सेल्स इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो, कॉस्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, सेल्स क्या होता है? सेल्स इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डायरेक्ट फॉर्मूला करके कर दो। ठीक, नहीं तो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन ए लिमिटेड के लिए 33.33 है तो सेल्स है 100। ठीक, तो अगर 1500 अगर हमारा कंट्रीब्यूशन होगा तो सेल्स कितना हो, यहीं से वो फॉर्मूला आता है। अगर 33.33 अगर हमारा कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स 100 है, तो अगर 1500 होगा तो कितना आएगा? सो दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 33.33 इंटू 1500, सो दैट 4500। ठीक है, इसको अगर हम डायरेक्टली करते तो सेल्स कैन बी टेकन एज sales is contribution divided by PV ratio. Contribution divided by PV ratio. So it is 1500 divided by 33 1/3%. So ये आ गया 4500। ऐसे ही यहाँ पे है 2400 एंड 4000। 2400 divided by 25%, so ये आ जाएगा 9600 एंड ये आ गया 4000 divided by 50%, so ये आ गया 8000। ठीक है, सो ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? अपना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में यहां हमारी सेल्स आ गई 4500, 9600 एंड 8000। ठीक है, देन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, वैसे वो 66.67% है तो 2/3 है, सो दिस इज 3000। दिस इज 75%, तो वो 7200 हो जाएगा एंड यहाँ पे 50% है तो ये 4000 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने कमेंट करने को, रिमेंबर ये जो तीनों कंपनीज हैं दे आर नॉट बिलोंगिंग टू सेम बिजनेस रिस्क क्लास, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग है, वेरिएबल कॉस्ट का भी रेशो अलग है, सेल्स भी अलग अलग है। तो जो हमने पिछला किया वो एज इट इज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। वहां पे सेल्स सेम था, वेरिएबल कॉस्ट सेम थी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट ही डिफरेंट थे, बट यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है। तो एज इट इज जो है पिछला वाला जो प्रॉब्लम है जो हमने वहां पे डिस्कशन किया था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होता है इस केस में। ठीक,
तो अब यहाँ पे उन्होंने कमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर पे कमेंट करने के लिए हमारे को बोला, तो हम कैसे उसको सोच के देखेंगे। अब पहले ए लिमिटेड की बात करें। अब ए लिमिटेड में सेल्स भी सबसे कम है, सेल्स कितना है 4500 ही है, और प्रॉफिट भी सबसे कम है। तो क्या ये अच्छी स्थिति है? नहीं है, नहीं है। बी लिमिटेड में सेल्स तो सबसे ज्यादा है बट प्रॉफिट फिर भी कम ही है, ये भी अच्छा नहीं है। तुमने बेच तो ज्यादा लिया बट एक्चुअल में तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट बहुत हाई है और फिक्स कॉस्ट भी ऐसी कोई कम नहीं है। ठीक है, अगर कंपेयर करो तो ये फिक्स कॉस्ट भी हाईएस्ट ही आती है, दो सी और बी की है फिक्स कॉस्ट 2000 है, वेरिएबल कॉस्ट भी इसकी 75% है, 75% हाईएस्ट है, फिक्स कॉस्ट भी हाईएस्ट है। तो यहां पे भी ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं आई। इज दिस क्लियर? बेचा तो ज्यादा बट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ज्यादा है, इसलिए प्रॉफिट कम ही आया। ठीक, देन अब इसके बाद में यहां पे जो सी लिमिटेड है इसमें हमने ठीक है हाईएस्ट नहीं बेचा पर लोएस्ट भी नहीं बेचा, वेरिएबल कॉस्ट भी 50% है जो कम है, फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है बट ठीक है फिर भी प्रॉफिट हाईएस्ट आया ना हमारा। इज इट क्लियर? सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि यहां पे हमारे को कैपिटल स्ट्रक्चर दिया नहीं हुआ था, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल नहीं सकते। क्या नहीं निकाल सकते हम? रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं निकाल सकते हैं। हमारे को यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। इज दिस क्लियर? तो वैसे तो क्या होता अगर कैपिटल स्ट्रक्चर दिया होता तो जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट आ जाता वो हम सिचुएशन सेलेक्ट कर लेते, बट ये तीनों कंपनी अलग है। तो यहाँ पे जो बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट पोजीशन में जो कंपनी है वो कंपनी सी लिमिटेड है, बेच भी ठीक ठाक रही है और प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा कमा रही है। ए और बी के मुकाबले में तो 10 गुना कमा रही है ना। अगर तुम्हारे को ए और बी में से, ए बी सी में से चॉइस करनी हो तो तुम कौन सी कंपनी की चॉइस करोगे? जो ज्यादा कमा रही है ना आखिर में। इज इट क्लियर? सो कौन सी कंपनी बेटर हो गई यहाँ पे? सी लिमिटेड बेटर हो गई। ये क्वेश्चन इसीलिए वो ढूंढा मैंने कि वो क्या है कि दोनों जो है प्रॉब्लम 12 और 13 दिखने को एक जैसे से हो जाता है बट सेम है नहीं। यहाँ पे सिर्फ लिवरेज के बेसिस पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं दे आर नॉट बिलोंगिंग टू सेम बिजनेस रिस्क क्लास, नेचर एंड साइज सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्कशन होगा या इंटरप्रिटेशन होगी वो डिफरेंट आ जाएगी। एंड स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो जाता है कि वो प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो एक ही थे, फिर भी हमारे को यहाँ पे आंसर्स में वेरिएशन कैसे हो गया। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? ठीक। और अगर हम सी लिमिटेड में देखें तो रिस्क भी लोएस्ट है, लोएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, लोएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज, और रिस्क सबसे कम, प्रॉफिट सबसे ज्यादा। ठीक। सो रिस्क कम पे जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया तो अच्छी बात है ना, कम रिस्क में ज्यादा कमाता हूं तो अच्छी बात, बिना रिस्क लिए कमा रहे हो तो और अच्छा ही है। सो राइट फॉर द बी, इसी का बी पार्ट कमेंट जो हमारे को करना है। सो बी, इसमें फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड structure of A Limited, A Limited is not good, is not good as it is having, as it is having lowest profits, lowest profit with lowest sales. Apart from it,
from it, it is having, apart from it, it is having higher operating leverage also, higher operating leverage also. ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी थी इनकी? ऑपरेटिंग लिवरेज थी ए लिमिटेड की 5, ठीक है। बी की हाईएस्ट है बट इसकी भी कम नहीं है, हायर साइड पे ही है, ठीक है। सो प्रॉफिट लोएस्ट है, रिस्क भी ऐसी कम नहीं है, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो उनके केस में है, ठीक है। देन अब यहां पे आता है सेकंड, बी लिमिटेड की सेल्स हाईएस्ट है, बी लिमिटेड की सेल्स हाईएस्ट है बट फिर भी प्रॉफिट लोएस्ट है। क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग हाईएस्ट वेरिएबल कॉस्ट 75% एंड हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट। जो 2000 फिक्स कॉस्ट है वो भी हाईएस्ट है, एबीसी में मुकाबला करोगे तो तीनों में हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट 2000 ही है, सी की भी सेम है बट वो दोनों ही ज्यादा ही है, ठीक है। साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है। सो व्हाट इज हियर, यहां पे राइट फॉर द सेकंड, बी लिमिटेड is having highest sales, highest sales with lowest profit, with the lowest profits, as it is having highest variable cost, in bracket write 75%, and highest fixed cost, and it is also having highest operating and financial leverage. Therefore, financial position and structure of company is not good. ठीक है। सो बी भी अच्छा नहीं है, सो ए बी सी में से ए और बी रिजेक्ट हो गए तो बचता सी है, बट सी क्यों बेटर है? लोग, कोई भी चीज जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, ठीक है, सो बेटर चॉइस क्या होती है? मैं इसलिए अच्छा नहीं हो सकता कि बाकी सब बुरे हैं, ठीक। मेरे को अगर अच्छा होना है तो मेरे को अच्छा प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बेटर हूं, ठीक। सो ए और बी रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है सी भी खराब होता, सी को भी रिजेक्ट कर देते, हम बोलते हैं कि तीनों कंपनी बेकार है, अडानी पावर, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी ग्रीन्स, तीनों में पैसा नहीं लगाना है, खत्म हो गया, ठीक है। बट
अब अगर मैं क्या कह रहा था कि ए और बी को रिजेक्ट कर दिया इसलिए सी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं, सी को बेटर होना पड़ेगा, इनसे उसको सेलेक्ट होना पड़ेगा, उसको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। ठीक, तो कैसे हो गया? सी लिमिटेड का प्रॉफिट हाईएस्ट है, सी लिमिटेड का प्रॉफिट हाईएस्ट है, 650 हाईएस्ट है इन तीनों के मुकाबले में। ठीक है, सो हाईएस्ट प्रॉफिट है। सेल्स भी ऐसी कम नहीं है, सेल्स मॉडरेट है, बेच भी सही सही रहे हैं। देन इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें, सो लोएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज और लोएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज, रिस्क भी कम है, कमा भी ज्यादा रहे हैं, कमा भी ज्यादा रहे हैं और रिस्क भी कम है। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि कम रिस्क पे कम कमा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, लोएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज लोएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज वाले को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, एक ही कंपनी की 4 सिचुएशन थी, दोनों में फर्क है। एक कंपनी की 4 सिचुएशन थी, यहां पे 3 अलग अलग कंपनी है, इनकी फिक्स कॉस्ट भी अलग है, वेरिएबल कॉस्ट भी अलग है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेजेस भी अलग है। तो दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो कंपेरेबल नहीं है, डायरेक्टली सिमिलर दिखते हैं बट सेम नहीं है। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है, लुक, प्लेटो ने क्या बताया था, लुक, कैसा होता है कि एक कंसेप्ट था कि जो नॉलेज है वो हमारे को कहां से आती है, वी गेट इट फ्रॉम आवर सेंसेस, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो छू के महसूस करते हैं, इनसे हमारी नॉलेज आती है। कंसेप्ट बुरा नहीं लगता, बट प्लेटो टोल्ड कि आवर सेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। हमारे को सूरज अर्थ का चक्कर लगाते हुए दिखता है, ये प्लेटो ने नहीं बताया, मैं अब अभी के सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से तो सूरज चक्कर लगाता था अर्थ का, बाइबल कुरान दोनों जगह लिखा हुआ है कि सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ठीक, सो अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारी आंख तो यही देख के बता रही ना कि सूरज ने चक्कर लगाया अर्थ का, बट ये डिसेप्शन है, ऐसा है नहीं। हम बहुत सारी चीजें, ट्रेन में बैठते हैं, हमारी ट्रेन चल दी, पेड़ पीछे दिखाई जाते दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, पेड़ वही है, हमारी ट्रेन चल रही। सो आवर आईज, ईयर्स, सेंसेस कैन बी डिसेप्शन। तो जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है, जो एब्सोल्यूट टर्म में सबके लिए सेम है, वही वही नॉलेज है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए नॉलेज का मतलब अलग है, तुम्हारे लिए नॉलेज का मतलब अलग है। मतलब अगर सी बेटर है, वहां पे जो एक चीज आती है, दैट इज वी कॉल एज द ओपिनियन एंड नॉलेज। ओपिनियंस आर नॉट नॉलेज। मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है। ठीक है, अब मेरा ओपिनियन है कि मैं तो अच्छा पढ़ाता हूं, बट तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। ये क्या हुआ? दिस इज ओपिनियन। ठीक, इट्स नॉट अ फैक्ट। ठीक, मेरा ओपिनियन और तुम्हारे ओपिनियन में फर्क हो सकता है। सो ओपिनियंस आर नॉट नॉलेज। नॉलेज इज द थिंग विच इज बियॉन्ड डाउट, जो सबके लिए सेम है। इज इट क्लियर? ठीक, सो एक्चुअल में दुनिया में ना झगड़ा इसी बात का है, लोग जो है ओपिनियंस को नॉलेज समझते हैं और फिर आपस में झगड़ा करते हैं। ठीक है, सो राइट, सी लिमिटेड, सी लिमिटेड is having highest profits, highest profits with moderate sales, moderate sales volume, and
is having lowest operating operating and financial operating and financial leverage. Therefore, its position is better than that of A limited and B limited. बेटर देन दैट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, होमवर्क देता हूँ मैं, एंड देन कल कंक्लूड करके कल ही नया चैप्टर शुरू कर देंगे. अच्छा, फर्स्ट कौन कौन से प्रॉब्लम्स बचे हैं इसमें? एक तो 14-15 बचे हैं. 14-15 बचे हैं. 16 कर लिया हमने, 17 हो गया, 18 भी हो गया, 22 बचा है. ठीक है, सो होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 22. हाँ, 23 हो गया. हाँ, 24 भी हो गया, 25 भी हो गया, 26 नहीं हुआ ना वो होमवर्क, 27 भी होमवर्क, 28 भी होमवर्क, 29 सॉल्व कर लिया हमने. ठीक है, फ्रॉम क्लास प्रॉब्लम्स. और एमसीक्यूज कल डिस्कस कर लेंगे, बाकी सब चीजें हो गई हैं उसमें. वैसे तो कंसेप्चुअली तो सब हो ही गया है, एक आध थोड़ा सा, क्योंकि ये होमवर्क भी चेक कराना है, तो कल फिर उसके साथ में करके वहीं कंक्लूड करेंगे. ठीक, सो आज के लिए फिर इतना ही रखता. थैंक यू वेरी मच. कल नॉर्मल टाइम.